Hello students, myself Rakesh Misra from LPM Public School, Gola Bazar. In this video lecture, you will learn methodologies of DNA fingerprinting. In previous video, you have learned the 99.9% DNA in most of the people are same, while 0.1% DNA is unique. What unique characters there are in 0.1%? This will actually clear in previous video lecture. It is actually the portion of mini satellites, or similarly as we can say that the VNTR. I hope your concept regarding VNTR, mini satellites and the concepts of repetitive and non-repetitive sequence is clear. If you have any doubt or problem in previous 3 video regarding back-to-back video for DNA fingerprinting, you can frequently ask me in comment box. Here, let us talk about the methodologies of DNA fingerprinting. Actually, as you all know, 99.9% DNA in every human being is same, while 0.1% DNA is unique. How can we find out 0.1% DNA? Listen, that 0.1% DNA gives the clue for identification. जैसे suppose that कहीं crime हुआ है, कहीं किसी जगह पे क्राइम हुआ है और सस्पेक्ट में 4 लोगों को पकड़ा गया। सस्पेक्ट में शक के आधार पर 4 लोगों को ABCD 4 लोगों को पकड़ा गया। जहाँ पे क्राइम हुआ है वहां पे सिर्फ एक ही एविडेंस है कि जिसने मर्डर किया है या जिसने क्राइम किया है उसकी हाइट 5 फीट है, और ऐसा पता लगा कि चारों की हाइट 5 फीट है। चारों में से एक ही क्रिमिनल है, चारों की हाइट 5 फीट है। तो हम ये कह सकते हैं कि चारों इनोसेंट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कोई एक इनोसेंट है, चारों को हम जेल नहीं भेज सकते, चारों को हम सजा नहीं दिला सकते। और ये भी कह सकते हैं इतना आसान नहीं इस केस को सॉल्व करना, तो हम दूसरे किसी पहलू पे जाएंगे, दूसरे किसी लेवल पे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या जानना है? लिसन, इन एवरी पीपल 99.9% सिमिलरिटी. The genomes and the desired DNA sequence has 99.9% same sequence, while 0.1% has unique sequence that gives the clue for DNA fingerprinting. Now let us talk about what we learned from the previous video lecture. Actually that portion is the portion of VNTR that need to extract first from the crime scene as well as the suspect and match. If the exact match or the complementary will be possible, then it is also possible to obtain the it is also possible to capture the criminal. So let us talk about what are the different methodologies of DNA fingerprinting. Actually, it is based on comparative study between two DNA from 2 persons. It is based on comparative study between 2 DNA from 2 persons. There is the way. So one by one we will describe what are the different way to compare than the 2 different persons. Listen carefully. First of all, the steps of DNA fingerprinting. Point 1, the isolation of DNA. Isolation means separation. So how can we separate the DNA? By means of the live cell. Live cell may present inside the blood, may present inside the sperm, may present inside the egg cell, the follicular cells, the saliva, mucous membrane of saliva, and different live cells are the source of DNA. So it may obtain from the blood, saliva, mucus, sperm, follicle, etc. Different source that may possibly gives you the source of DNA, that gives you the DNA. So when the DNA get obtained, suppose that
This is the DNA that you obtain from the blood, from saliva, from mucus, etc. In every portion of live cells, there is the possibility of nucleus, and there is possibility of the chromosomes in that nucleus, and from that chromosomes we can easily separate out the DNA through density gradient centrifugation method. So the DNA that you obtain is very long. The DNA which you obtained is very long. There is need to cut the DNA that you obtained and frame it into the sequence. So first of all, there is a need of the fragmentation of DNA. Fragmentation of isolated DNA. Isolated DNA through restriction enzyme. Through restriction enzyme. Fragmentation of that DNA through restriction enzyme. So what is restriction enzyme? The very special class of enzyme that you will study in chapter 11 is very special class of enzyme that cut the DNA into several pieces. That DNA, with the help of restriction endonuclease enzyme, may be cut into several pieces. So we can say that restriction endonuclease or simply restriction enzyme is act as the biological scissor. With the help of restriction enzyme, you can cut the DNA sequence as according to desired fragments. Next point, third, sorting और सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. जब आप डीएनए को काट लेंगे तो उसमें कुछ छोटे साइज के भी जीन्स होंगे, डीएनए कुछ बड़े साइज के भी होंगे. ये एवरेज साइज के होने वाले, कुछ बड़े साइज के होंगे, कुछ छोटे साइज के होंगे. सो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे? एवरेज साइज के डीएनए की, जो बहुत बड़े भी ना हो बहुत छोटे भी ना हो. ठीक है. सो द थर्ड स्टेप इज सेपरेशन ऑफ डीएनए through gel electrophoresis. Gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? You need to know. How can you define the gel electrophoresis? Because it is very important, or we can say that it is most important topic for the class 12 students. The electrophoresis or gel electrophoresis is very important topic from chapter 6 and also from chapter 11 and 12. So let us talk about what is gel electrophoresis. ये तो क्लियर हो गया कि डीएनए को सेपरेट करने के लिए, डिजायर्ड लेंथ ऑफ डीएनए को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. लेकिन है क्या, उसको जानना है. एग्जाम में आता है तो पूछते हैं. तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया. मेथड टू सेपरेट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स एज अकॉर्डिंग टू साइज और वेट और height. There will be the term gel electrophoresis. So what is gel electrophoresis? Listen carefully. Actually ये होता है कि एक ट्रे टाइप का स्ट्रक्चर है. एक ट्रे है. ट्रे आप देखिए कि चारों तरफ से ऐसे कॉर्नर होता है, उसमें लिक्विड अगर भर देते हैं एक एवरेज हाइट तक तो गिरता नहीं चारों तरफ. ठीक है. थोड़ा ज्यादा भरेंगे तो गिरेगा, लेकिन अगर रखा हुआ तो गिरेगा नहीं. ऐसा ट्रे सपोज करो कि इसमें लिक्विड भरा हुआ, इधर इधर चारों तरफ इसकी बाउंड्री थोड़ी सी हाइट पे है तो गिरेगा नहीं. सो एक स्पेशल एक ट्रे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट. और इसमें क्या भरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट? दिस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट कंसिस्ट द वेरी स्पेशल structure, very special gel like structure that is known as agarose gel. Agarose gel. So electrophoretic plate are filled with the agarose gel. Why we use the agarose gel? Agarose gel never allow to sink the DNA material that we already filled inside the agarose gel. ठीक है. So agarose gel obtained कैसे किया था? एग्जाम में कभी कोई पूछते source of agarose gel. Gelidium and Gracilaria, the two different kinds of seaweeds. So seaweeds, Gelidium and Gracilaria is responsible for the source of agarose gel. ठीक है. अब होता क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा वेल होता है जिसके थ्रू हम जो डीएनए ऑपरेट किए हैं किसी सैंपल में, तो इसके थ्रू हम इसमें डालते हैं तो डीएनए अब कहाँ आ जाएगा?
ये आ जाएगा जेल। लिसन, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये 11 सेल में हमने डाल दिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिंक होता है। ये एनोड होता है और ये निगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये होता है कैथोड और एक होता है एनोड, याद रखना। कैथोड एनोड प्लेस कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो कराई जाती है, ध्यान सुनना। तो डीएनए एज यू ऑल नो ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव साइड पर अट्रैक्ट होना शुरू होगा, इधर मूव करना शुरू कर देगा डीएनए। ये डीएनए मूव करने के बाद सबसे जो हाईली लाइट जो डीएनए होगा, सबसे हल्का डीएनए होगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। द लाइटर डीएनए विल बी टुवर्ड्स द कैथोड, और सबसे हैवियर जो डीएनए होगा वो पीछे रह जाएगा, यानी यहाँ रह जाएगा। और एवरेज साइड के डीएनए कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे मिड में। सो वी कैन से दैट एज पर द electricity supply as the electrical supply made in the electrophoretic plate through the gel agarose to the different cathodes and anodes, then the DNA move toward the positively charged, because DNA itself is negatively charged. So as the DNA start moving, we can clearly say that DNA on the basis of their length may be separated. How? The lighter DNA will be at the near to the cathode, the heavier DNA will remain in the just toward the anode, while the average side DNA will be at the middle. How can we see the DNA? In the fourth point, visualization. DNA can be visualized with the help of very special chemical that is known as ethidium bromide, ETBr. Ethidium bromide, ETBr. एग्जाम में आता, how can we visualize the DNA fragments? We can visualize the DNA fragment through ETBr, ethidium bromide, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट आपको जानना क्या है, इसके बाद की स्ट्रक्चर, पांचवा सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग, व्हाट इज सदर्न ब्लॉटिंग? लिसन करके। एक्चुअली डीएनए एज वी apply the ethidium bromide, then we can clearly visualize the DNA fragments as according to length. So if we obtain the variable length or desired length at the middle, then we stop the flow of electricity and the DNA will remain on its original place. Means जहाँ DNA जहाँ रहेगा वहीं पे रुक जाएगा। मिडिल वाली एवरेज साइज का डीएनए मिडिल पे रह जाएगा, स्मॉल साइज का डीएनए ये टुवर्ड द कैथोड पहुंच जाएगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज डीएनए की साइड में भी हैवियर डीएनए चलने ही वाले थे। अगर हम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो सारा डीएनए पहुंच जाएगा कैथोड की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये तुरंत सप्लाई रोक देते हैं, इससे हमारा विद इन फ्यू सेकंड, विद इन फ्यू मिनट द एवरेज साइज के डीएनए मिडिल साइज में ऑब्टेन होता है। अब ये एवरेज साइज के डीएनए को आपको ऑब्टेन भी करना है, प्लस इसको दूसरे किसी डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स के साथ इसको क्या करना है, इसको हाइब्रिडाइज भी करवाना। हाइब्रिडाइज का पर्पस क्या होता है ये भी समझ लो। सपोज दैट ये किसी क्राइम सीन से ऑब्टेन, सपोज दैट ये किसी क्राइम सीन से ऑब्टेन डीएनए का फ्रेगमेंट है AATTG, और ये किसी सस्पेक्ट का, सपोज दैट ये सस्पेक्ट है, ये किसी सस्पेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है AAGGTTG। तो जब इसका हम इससे हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, इस डीएनए को उठा के इस डीएनए के साथ डाल देंगे, हमको क्या मिलेगा? कोई बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड नहीं बनने की वजह से ये दोनों डीएनए हमेशा एक दूसरे से दूर दूर ही रहेंगे। बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैसे पता चलता है? जैसे ये AATTC है, AATTG है, और ये दो पर्सन है, एक पर्सन ये जिसका सीक्वेंस है GGTTG, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, ये पर्सन सस्पेक्ट था, अब ये इनोसेंट हो गया। लेकिन ये दूसरा पर्सन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है TTAAC, तो जैसे ही हम इसके साथ क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तुरंत ही ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा TTAAC, और जैसे ये बाइंड करेगा डबल स्टैंड बन जाएगा, और डबल स्टैंड बनते ही सस्पेक्ट को क्रिमिनल बना दिया जाएगा, क्योंकि वो क्राइम केस में इन्वॉल्व है। इसी वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सस्पेक्ट जो किसी क्राइम सीन से हमने ब्लड ऑब्टेन किया उसमें जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ इसी का कॉम्प्लीमेंट्री है।
ठीक है। वो 99.9% को हम नहीं रिकवर करते हैं, वो सारे डीएनए को रिकवर करते हैं और सब डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया है, तो यही सस्पेक्ट है। कुछ डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया, जिसका मतलब 0.1% डीएनए है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारा एकदम से 99.9% डीएनए बिल्कुल अलग हो जाएगा, 0.1% अलग हो जाएगा। यानी कि हमको क्या है, 0.1% डीएनए से मतलब रखना, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तो ये सस्पेक्ट है, अदरवाइज सस्पेक्ट नहीं है। तो हमको क्या करना रहता है कि इसके डीएनए को उठा के सस्पेक्ट, जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसके डीएनए में ये डीएनए देखो, अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट में जो डीएनए इसको उठा के हमको दूसरे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट जो क्राइम सीन से ऑब्टेन किया गया डीएनए उसमें डालना है। तो ये मेथड से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को चिपकाना पड़ेगा एक नाइट्रोसेल्यूलोज के चद्दर पे, नाइट्रोसेल्यूलोज की सीट पे, इसको ट्रांसफर करने की, यानी इसको उठा के दूसरे किसी इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट पे ट्रांसफर करने के मेथड को क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें करते क्या है, एक नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट होती है, इस शीट को इस पे बिछा देते हैं ताकि सारा डीएनए अलॉन्ग विथ द एगारोस जेल उस पे चिपक जाए। जब इस पे चिपक जाएगा सारा डीएनए एगारोस जेल के साथ, तो इसमें एगारोस जेल एक्सेस होगा, उसको हमको सुखाना है, और सुखाने के बाद क्या करना है, हमको दूसरे किसी इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट जो हमने क्राइम सीन से ऑब्टेन किया उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सारे डीएनए अब उसमें चले जाएंगे और अपना कॉम्प्लीमेंट्री को ढूंढ लेंगे, और जहाँ ढूंढेंगे वहीं पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी देखना क्या है कि इस नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट को हम यहाँ पे लपेट दिए, उसके बाद क्या करना है, उठा लिया, और उठाने के बाद इसको हमने सुखाना है। सुखाने के लिए हमको क्या करना है, एक ग्लास सपोर्ट लेना है, ग्लास सपोर्ट, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट, नाइट्रोसेल्यूलोज शीट, इसके ऊपर हमको एब्जॉर्बेंट रख देना, जो बेसिक काम क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा एक्सेस एगारोस जेल को एब्जॉर्ब करेगा, और इसके ऊपर कोई हैवी वेट रख देंगे जिसके प्रेशर से एब्जॉर्बेंट क्या करेगा और आसानी से वर्क करके एगारोस जेल को ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है, एगारोस जेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। So as the agarose gel absorb, as the ethidium bromide from DNA get absorbed, then the nitrocellulose sheet has only DNA, and that DNA later transfer to the agarose gel containing another medium of electrophoretic plates. So next heading is the heading number 6. Next point after southern blotting is hybridization of DNA with VNTR probe. Hybridization of DNA. Next जो भी होगा 6.7 या 8. Hybridization of DNA with VNTR probe. VNTR प्रोब क्या होता है, हमने जो क्राइम सीन से डीएनए ऑब्टेन किया उसको रेडियो एक्टिव बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब बॉन्ड बनाएगा तो वो अपने आप को शाइन करेगा, ग्लो कराएगा, जब एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो चमकेगा। अब उसके साथ जो कोई भी दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो सरफेस पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम में हमको क्या करना पड़ता है, डीएनए जैसे मान लो कि क्राइम सीन से हमने डीएनए ऑब्टेन किया है, ये डीएनए ऑब्टेन किया है, इस डीएनए को हमको रेडियो एक्टिव लेबल अगर कर देंगे, रेडियो एक्टिव लेबल, तो अब ये डीएनए प्रोब हो गया, ये याद रखना है। और ये हम किसी पर्सन से ऑब्टेन किए हैं, इस डीएनए को इसके साथ हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइज करना, ताकि इसका सिंगल जो स्ट्रैंड है ये क्या होता है, इसके सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये क्या कर जाए, बाइंड कर जाए, ठीक है। तो ये एक लाइट वेट एक चमकेगा, हमको मिलेगा, और उसके साथ ये नहीं चमकेगा, ग्लो नहीं करेगा, लेकिन हम ये पता लगा लेंगे कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो हमेशा डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डबल स्ट्रैंड अपना फाइंड आउट कर लेगा आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेते हैं। एक चीज और याद रखना है कि ये जो रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए हम इस डीएनए को कर रहे हैं, इसमें सभी डीएनए को नहीं करते रेडियो एक्टिव लेवल, ओनली दैट डीएनए सीक्वेंस है 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ उसी डीएनए को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेस कितने हो, 100 से लेकर के 1000 हो, तभी वो डीएनए प्रोब होगा। दैट प्रोब इज एक्चुअली द VNTR probe. So in this method we hybridize the DNA with VNTR probe. It means DNA from a person hybridized with the VNTR probe in order to make them complementary. ठीक है। Next point 6 is autoradiography.
What is autoradiography? In order to expose the DNA, in order to obtain the clear-cut visualization from a DNA, there is a need of X-ray light. If you expose the X-ray light over the obtained radioactive labeled, radioactive VNTR labeled, then there is a clear visual effect you will get. That visual effect possible only even the X-ray, exposure of X-ray. Without X-ray light we cannot obtain the visual of DNA, visual of desired DNA. That process is known as autoradiography. In next video lecture we will learn the important concept related to this video lecture, that is methodology of part 1. This is the methodology of part 1. In next video lecture, the DNA fingerprinting methodology part 2. In that video you will learn how can we compare the obtained DNA with the crime scene DNA. Keep in mind, so be with the video lecture and be with this channel in order to understand the concepts of methodology of DNA. Thank you.